Disadvantage. Yes. What are the disadvantages of double entry system? So disadvantage of double entry system, we note. Thank you, ma'am. I'm sorry, ma'am. No problem. What is the last date of availing input tax credit? Input tax credit availing the next month of last date. Yes. 31st September or filing of the return, whichever is earlier. 31st September. September, yes, sir. 31st September or 30th September? 30 September, yes, sir. Sorry. Okay. So you have mentioned that you have done internal preparation of reply to internal audit report also. Yes, sir. So can you Yes, let me sir, know also, who decides the internal auditor of a company? Board of directors decide the internal auditor of the company. Mm-hmm. Okay, very good. And Yes, how frequently it is conducted, internal audit? frequently, sir, internal audit conducted in company. Sir, it is not sure कि how many times conducted in internal audit. So हर महीने भी यदि conduct करना है तो कर सकते Yes, हैं. sir. Yes, sir. And what about statutory audit? When why, sir, training in House and Order Development Corporation, the internal auditors are comes in every month. Every month, end of the month, and reconcile the all vouchers and supporting. And we, if any miss voucher supporting, then he ask, yeah, I reply the query, sir. Okay, is Hudco a listed company? Yes, a listed company. What is the share In price? NSE and BSC. What is the share price? Around sir 55 rupees per share. 55. Sir, I'm not sure, but sir, around 55. And what is the main work of Hudco? Sir, Which business? Main work of Housing and Urban Development Corporation is given to loan to state government, central governments, and individuals for the construction of road, building, or infrastructure. Suppose sir, overbridge, all are, yes. Okay. Mainly, sir, Indian Red Cross Society's business is providing loan. Providing loans. Okay, Dheeraj, you mentioned in your CV in Harikesh Dhaval and Company that you have Yes, sir. posting accruals. What is the posting accruals? Sir, posting accruals is that when any entry. Okay. Sir, I can't. Okay, next question. One is cash basis accounting and second one is the accrual basis accounting. Yes, Which sir. accounting should be followed by the Companies Act? Sir, Company Act follow by accrual basis methods and cash. Both are, sir. Both bases are acceptable in the as per company law? As per company law, yes, sir. Okay. Next question is, you preparing manuals and forms of bookkeeping and accounting staff. Yes. What is the yes, bookkeeping? Sir. Bookkeeping, sir, we record all the transaction day to day in maintenance of the books. And just like sir, related to EPB payment commission, we maintain in diary. We paid salary, we maintain in diary, and after maintain in bookkeeping, we posted in journal entry and ledger. Which subject do you like the most in CMA curriculum? Sir, in direct tax, sir. Direct taxes. Yes. So what is the difference between TDS and TCS? Sir, TDS, that is tax deduction at source, and TCS is tax collection at source. TDS, when I payment, when any individual or company, so suppose example, sir, if I pay professional fee for any individual, then I deduct TDS, percentage is 2%, 10%. But sir, professional tax is 10% deducted. And I deduct and paid to the government in the next month of 7th day. And
TDS is also collected by me. For example, when I sell a car, then I deduct TCS, collect TCS from the customer, and I deposit in central government, sir. Okay, over to you, sir. Okay, Dheeraj. Yes, sir. Tell me, what is NPV? NPV, sir. G. NPV. Net profit. NPV. Okay. Net profit. Sir. NAV or sir NPV? NPV. It's net, NPV. net present value. Net- What is net present Oh, value? net. Yes, sir. Sorry, sir. Net present value. Say, sir. Net present value is that is sir when today present value or equal to sir sorry sir वो define Okay. What is PE ratio? PE ratio is equal to market price per share divided by EPS per share. Okay. Where is the headquarters situated of Foodco? Sir, New Delhi, sir. Okay. And from which industry, which sector it belongs? Belongs, sir, public sector undertaking, sir. Which sector? FMCG sector, IT sector, FM, or any other? any other, sir, manufacturing. Any other. Okay, okay, Dheeraj. What is PV ratio? PE Profit- ratio, sir. Profit volume ratio. Earning ratio. Profit volume. Profit volume ratio. Okay, Dheeraj, tell us something about I your can't strengths. remember. Sir, my strength is that I am very laborious. I handle any work to how to work. Because, sir, yes, sir, that's Laborious. yes, sir. Okay. Laborious and intelligent, sir. Intelligent. Okay. Yes, sir. And why should we hire you like all the other candidates? Why should we hire you? Because I already hard working. I am में बहुत से ये काम को मैंने करते हुए इस पोस्ट पे आज मैं आया हूँ सर। तो मैं बहुत ही ये लगनशील से काम करता हूँ किसी भी काम को और एनी सर कि आई एम होनेस्ट। One question from my side, Dheeraj, you just said that your strengths are you are laborious and you are intelligent. First time when you realized that you are intelligent, like what is the basis of this conclusion that you are intelligent? I that now I am seeing I am very laborious because I am when I was 6 months then my family my father is mentally problem. Then once धीरज to तुम्हारा I- नेटवर्क काफी अटक रहा है. Not able to hear आप you बहुत properly. लैग कर रहे हो धीरज. आपका लैग हो रहा है, कुछ भी Sir, आवाज my- क्लियर नहीं आ रही है. Yes, sir. Can I speak Hindi, sir? Yeah, why not? बिल्कुल आप बोल सकते. जब मैं 6 साल का था तो उस समय मैंने अपने पापा का मतलब जस्ट लाइक उनके दिमाग प्रॉब्लम ठीक नहीं हुए में दिमाग उनका ठीक नहीं तो उस समय से लेकर मैं जब मेरी दादी मम्मी आज तक पढ़ाई लिखाई सत्तू बेचकर तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इस पढ़ाई को लेकर गाड़ी चलाए मतलब सुबह शाम गाड़ी चलाते रात में अपना पढ़ाई करते थे तो मैं जस्ट आई रियलाइज कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने को साइड प्रॉब्लम को साइड रखकर मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि मुझे भी कुछ यहाँ तक करना है तो मैम सो आई रियलाइज आई एम इंटेलिजेंस एंड लेबोरियस. Okay.
ओके, और अभी करंटली I have no any, yes sir, हाँ क्या I बोल have रहे no any facility. सर मेरे पास फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को कभी कोसा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है करने के लिए, वो नहीं है। मैंने हार्ड वर्किंग किया और अपनी जरूरतों को पूरा करके सर यहाँ तक मैंने आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड धीरज। सो धीरज, आपने लिखा हुआ है कि अभी आप करंटली भी काम कर रहे हो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। यस उसको- सर। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओगे, या क्या काम कर सर रहे हो? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एज इंटरनेशनल सोसाइटी सर, एज आई एम वर्किंग इन सर एज असिस्टेंट अकाउंटेंट सर। ये जस्ट लाइक ये सोसाइटी सर मेडिकल ट्रीटमेंट्स वेन सर, जैसे ये हिंदी आई कैन सर स्पीक इन हिंदी सर। वेन जब कोविड-19 2020-21 में आए सर, तो उस समय सोसाइटी, तो वो सर एज ए इंटरनेशनल सोसाइटी है, गवर्नमेंट का उसमें सर बहुत कम हस्तक्षेप है। और वो लोग एक मिलकर जहाँ जहाँ सर आवश्यकता थे कोविड वैक्सीन देने के लिए, उनकी खान पीन आवश्यकता को देने के लिए, तो सब लोग सोसाइटी लोग वहाँ जाकर वो फूड प्रोवाइड करते थे, मेडिसिन प्रोवाइड करते थे सर। रेड क्रॉस और सोसाइटी तो इंडिया में एड्स के सर लिए भी काम करती है, एड्स की यस सर, बीमारी के एड्स लिए के भी लिए काम भी, करती है। एड्स के लिए भी सर, टीबी के जांच का भी काम करती है सर। और वो सर इंडिया में 700 से तो आप ज्यादा वहाँ क्या करते हो? सेंटर इसके आप खुले वहाँ हुए क्या हैं करते हो? सर। जैसे as a assistant accountant sir, we maintain all donation receive and preparation of balance sheet on payment to salary and all the organization। तो ये एनजीओ है, चैरिटेबल ट्रस्ट है? NGO है सर, yes sir, non profit organization sir, section 8। Okay, Dheeraj, last question from my side. yes sir, Suppose we are L&T company, we will appoint you as a team leader. yes sir, Okay, then yes sir, in your team many members are older than you, they are not accepting you as a team leader. How will you cope Yes, up with your team member? How will you arrange, harmonize? How will you achieve the target that will company decide for you? sir when all are हिंदी younger में बोल than सकते हैं, me, हिंदी में बोल सकते हैं। yes sir, सर अगर मुझे L&T कंपनी में अगर मुझे टीम मेंबर बनाया जाता है तो सर मैं अपने यंगर जो हमसे बड़े लोग हैं सर, उन लोगों को मैं कंसिडरेशन करूंगा कि कैसे कोई भी काम को, जैसे सपोज सर नाउ टेक्नोलॉजी इज ई कॉमर्स एंड लैपटॉप आर, ये सर ऑल वर्क आर डन इन लैपटॉप, बट बिफोर व्हेन ऑल आर वर्क इन ऑफिस इन मैनुअली, then I realize कि I am the best and you help कि how to maintain in laptops and Okay. work। Any question from the panel? No, No. I think Okay, feedback दे दीजिए फिर। so. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट। धीरज, मैं आपको ये बोलूंगी कि थोड़ा माइक ऊपर करिए। हाँ धीरज, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप परमिशन लेके ना हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप जो बोलना चाह रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो शायद वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पैनल से परमिशन लीजिए और उसके बाद आप हिंदी में बात कीजिए, तो आई थिंक थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगे। टेक्निकली जैसे मैंने आपसे 2 सवाल पूछे कि डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आपने सबसे पहले एडवांटेज बोला। तो सबसे पहली बात, इस हिंदी इंग्लिश की जगलिंग से बाहर निकलेंगे और केवल फोकस करेंगे कि पैनल आपसे पूछ क्या रहा है। सो है ना, बिकॉज अगर मतलब कोशिश करें कि पैनल को दोबारा से क्वेश्चन रिपीट ना करना पड़े। बहुत आसान सा सवाल था कि डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है, कि हम गलती नहीं ढूंढ पाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि दोनों साइड बराबर होते हैं, तो हाउ वी विल फाइंड द बराबर होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और गूगल कीजिएगा। और दूसरा, आईटीसी लेने की लास्ट डेट 30th November फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये सवाल तो हमने जो आईडीटी का डोमेन किया था उसमें शामिल था, है ना। ये सवाल गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए थी। जो पढ़ चुके, जो सवाल आपके सामने आ चुके हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक हो, है ना। तो थोड़ा सा उसे और रिवाइज कर लीजिए, देन और सो नेक्स्ट वन। धीरज बाबू, आपको एक क्वेश्चन पूछा था एक्रूअल बेसिस का। यू हैव मेंशन इन योर सीवी बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, तो उस पर थोड़ा पढ़िएगा।
एचआर sir. के बेस के जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि अगर आपके टीम मेंबर्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा आंसर दे सकते थे कि एक्शंस आर Yes. जज्ड बाय द रिजल्ट, इफ माय स्किल इज डोमिनेटिंग देन आई विल डेफिनेटली लीड अप, दे विल एक्सेप्टिंग माय लीडरशिप। तो स्किल अगर है तो लीडरशिप इज नॉट अबाउट द एज। तो ऐसा कुछ आंसर दे जो बोलने में बढ़िया लगे। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल हिंदी इंग्लिश का थोड़ा Yes. इश्यू, उसको दूर करके रखिएगा। और निपुण सर, अखिलेश सर। जी अखिलेश सर आप बोल दीजिए। हाँ धीरज, एफएम डोमेन के क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बट पीवी रेशियो बहुत कंफ्यूजन था आपको, एनपीवी PE ratio तो yes, sir. है ना। और जैसे हुडको है, हुडको में आपने काम किया है 15 मंथ्स, Yes, sir. वो कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था Yes, sir. Sir. क्योंकि आपने पूरा वर्किंग किया है, आपने पूरे ट्रांजेक्शंस देखे होंगे वहां पर। तो किस Yes, sir. हाँ पर्टिकुलर उसका ऑपरेशन क्या है, किसमें वो डील कर रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, तो ये सब चीज ध्यान रखो। Yes. फाइनेंशियल सर्विसेज में डील कर रहा है हुडको। Yes. तो बाकी थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना इसके बाद, जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो। हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है। जी सर हाँ बोलो कुछ, जैसे- धीरज कुछ हो गया सर सर। जैसे सर मेरे सर 2 कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुए सर, एक बेल में सर और एक इंडियन ऑयल में सर। हाँ तो उनके रिगार्डिंग आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाना। और आप जैसे शेयर प्राइस बताए थे, तो निपुण सर ने जैसे पूछा, तो शेयर प्राइस वो 55 साल भर पहले का था। यस हाँ, सर। तो एक बार लेटेस्ट शेयर Yes, प्राइस sir. भी आप दिमाग में रख के जाएंगे। ओके तो सर, धीरज, तो- हाँ धीरज एक Yes, तो शुरुआत में जब हमने टेल मी समथिंग पूछा आपको, उसका भी Yes, आंसर sir. बराबर से आपका प्रिपेयर्ड नहीं है। आपने 1 मिनट में वो आंसर को कवर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ना आपने वर्क एक्स के बारे में बताया, ना आपने आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया। टेल मी समथिंग पे अपन ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, वो हाँ, अगर yes, आपका sir. मिस हुआ Yes. है तो उसकी रिकॉर्डिंग जाके देखो, है ना। ये पूरा- बिल्कुल आंसर आपका Yes. ठीक नहीं था। आपने जो आपकी ड्राइवर वाला काम के बारे में बताया, जर्नी वाला, वो आप कहीं Yes, ना sir. कहीं आपके टेल मी समथिंग में बताओ। वो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है इंटरव्यूअर्स के लिए, पैनलिस्ट के लिए। ठीक है कि इतने Yes, sir. लेबरस आपका वर्क था, ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, जरूर बताना ये वाली बात। रेज्यूमे sir. भी मुझे आपका देख रहा है तो रेज्यूमे पे नहीं है सर। फॉर्मेटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, और ना कुछ फोटो है, मतलब कुछ अट्रैक्शन नहीं है। और बहुत ही, जैसे तुमने लास्ट में लिखा है करंटली वर्किंग इंडियन, वो दिख भी नहीं रहा है। वो बहुत गहराई से यदि देखेगा पैनलिस्ट तो दिख रहा है। तो तुमने Okay, फॉर्मेटिंग या तो तुम्हारा डिस्कशन शायद सोनल मैम या किसी से हुआ होगा पूरे रेज्यूमे पे। तो ये Yes, sir. मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम तुमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सारी चीज मेंशन करी हुई है, तो थोड़ा अजीब सा है। Yes, sir. इसको तुम, क्योंकि तुमने ठीक है। वर्क ऑलरेडी बहुत किया हुआ है, तो उसको बराबर से प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा Okay, sir. कैमरे को पीछे और रखोगे, ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा तो पीछे रहो थोड़ा। बॉडी कम्युनिकेशंस बिल्कुल नहीं दिखते हैं, तो बॉडी कम्युनिकेशंस अच्छे से दिखने चाहिए। नहीं आंसर आ रहा है तो सर आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो। ठीक है, जैसे एनपीवी तुम्हें नहीं समझ आया तो भी तुम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आई डोंट नो। ठीक है, ब्लेजर सूट, तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान सूट एक खरीद ले, अगर नहीं तो कोई दोस्त से ले ले। ठीक है, एक Yes, सूट sir. पहन के आएगा तो एक बराबर से अच्छा लगेगा। और मैंने तेरे को बोल ही दिया था इंटरव्यू में हिंदी में ही बोलना है, तो तू इंग्लिश आज ट्राई Yes, क्यों sir. करा। आज मैम ने तेरे को वापस बोल दिया, मैंने तेरे को बोल ही दिया था कि हिंदी में ही बोलना है तेरे को, तू टेंशन ही मत ले। Sorry. Sorry. Yes. ठीक है, तो इन पे वर्किंग कर। ये बेसिक क्वेश्चन, स्ट्रेंथ, टेल मी समथिंग, ये आपका प्रिपरेशन, मतलब ये रट्टा हो जाने चाहिए अब तुम्हारे दिमाग में। पूरा। Okay, sir. ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, Yes. तुम्हारा वर्क एक्स अच्छा है, सिलेक्ट हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। ओके सर वो सर सम अंजलि पॉइंट को बोला मैं सर आप कुछ सर बता सर। अंजलि को मैसेज कर दो। सर इंडियन ऑयल के बारे में सर कुछ बता देते सर। इंडियन ऑयल के बारे में क्या बताएं। जैसे सर मेरा इंटरव्यू है सर 25 को सर, तो कुछ क्या क्या करने सर उसके तो ये प्रिपेयर करो, आज जो अपन ने डिस्कशन किया है वही आप करोगे। उस पे विकिपीडिया working करो। एक बार सर्च करके जाना, विकिपीडिया। बस इंडियन Google ऑयल के search बारे से। में थोड़ा रिसर्च करके जाओ। हाँ, बाकी कि आज जो हमने operations- डिस्कशन किया उस पे वर्किंग हाँ। करो। कहाँ पे वर्किंग है, कौन सीईओ है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब फाउंड हुआ, कहाँ कहाँ वर्किंग है, क्या शेयर Yes, प्राइस sir. है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और डोमेन से रिलेटेड भी सर वो सब जो सर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और वो मैम जो दिए हैं सर एफएम रिलेटेड सब सर। हाँ वो एक बार रिकॉल करके चले जाइएगा। बॉडी है, कितने सब आपके पास? अभी 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे 48 घंटे अभी में। 48 घंटे बहुत होते हैं, मोर देन इनफ है। Yes. ठीक है, यस मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट धीरज।
सर आई विल ट्राई बेस्ट सर, हिंदी में ही सर इंटरव्यू मैं दे दूंगा सर। हाँ बिल्कुल